Hi dear students, welcome to business studies class. So we are completed our first chapter, that is business, trade and commerce. So successfully we are completed all the topic from first chapter. From today onwards we are going to start our second chapter, that is forms of business organization. It is our second chapter, forms of business organization, and according to the weightage it carries the largest weightage, and lot of topics included within that, but in this topic there is a chances of confusion also, but be careful and watch the video, okay, because lot of contents are there, lot of features, demerits of all the form of business organization, so you are going to get quite confusion between each other. So be clear the concept, and if you have any doubt please comment below, okay. So what is mean forms of business organization? So forms of business organization means what? See, within our country or other country, okay, there are different types of organization, there are different types of companies we can start. Different type means what? It is not related to what you are producing, what you are purchasing or what you are selling. It is not related with that. Your business nature, your business size, it is a not matter here. आप क्या बिजनेस कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, दैट इज द नॉट मैटर हियर, बट आपका बिजनेस का टाइप कौन सा है, मतलब कैसे कर रहे हो, ओनरशिप आपकी बिजनेस की कैसी है. सो डिपेंड अपॉन द ओनरशिप ऑफ बिजनेस, देयर आर डिपेंड अपॉन द ओनरशिप ऑफ बिजनेस देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. सो दैट इज नोन एज द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. Depend upon the ownership, means who are the owner of that business, it depend upon that. According to that there are 5 types or 5 forms of business organization, okay. business का मालिक कौन है उसके ऊपर according to that there are 5 types of business organizations are there. According to that it is categorized. So one by one, see there are total 5 type, or you can call there are total 5 form का मतलब type, form of business organization are there. One by one we will see the clear concept of each type. See, first one is sole proprietorship, joint Hindu family business, partnership, cooperative societies, joint stock company, cooperative societies and joint stock company. So there are total 5 types of forms of business organization. So one by one we will see the clear concept of each type, okay. So see, within all concept you are going to see merits, demerits, that is merits means advantages, demerits means disadvantages, and features. So we are going to see all the concept of all these 5 chapters, okay. So sole proprietorship features, merit, demerit, joint into family business same, partnership same, cooperative society same, and joint stock company same. So that's why it is a within feature, merit, demerit there is a chances of confusion. So that's why be clear and clear the concept, okay. So be concentrate on it, okay. So now see, let's start the main topic. So sole proprietorship. Sole proprietorship, what is the meaning of sole proprietorship? Sole means only or one. Sole means sole. See, word it is categorized sole and proprietorship. Sole and proprietorship. Sole का मतलब है only, single person or only one person. Proprietorship का मतलब है ओनर. ओनर यहाँ पे है सोल मीन्स ओनली वन ओनर, ओनली वन ओनर, मतलब जिस बिजनेस का सभी काम, सभी मैनेजमेंट का काम रहने दो, कंट्रोलिंग का काम रहने दो, कुछ भी काम रहने दो, उस बिजनेस का एक ही पर्सन कैरी आउट करता है, वो उस बिजनेस का ओनर रहता है. बिजनेस ओन मतलब मालिक है, खुद ने स्टार्ट किया है, मैनेज खुद ही मैनेज कर रहा है,
और खुद ही कंट्रोल कर रहा है, मतलब जो भी प्रोसेस है बाकी के, जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज लग रहे हैं, जो भी बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल लग रहा है, कुछ भी हो रहा है बिजनेस में, वो सभी मतलब खुद ही स्टार्ट करता है, खुद ही मैनेजमेंट का सभी काम करता है, मतलब जो भी बिजनेस का प्लानिंग करना हो, ऑर्गेनाइजिंग करना हो, कुछ भी मैनेजमेंट का जो भी काम है वो खुद ही कर रहा है। और कंट्रोल, जो भी कंट्रोलिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड है हमारे बिजनेस के लिए, मतलब हाँ यहाँ पे टैक्स पे करना है, कुछ भी काम रिलेटेड बिजनेस के बारे में, वो सिंगल पर्सन ही कर रहा है। इट इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पर्सन। फॉर दैट काइंड ऑफ बिजनेस वी आर गोइंग टू कॉल एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप। मतलब इफ एनी बिजनेस इट इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड, थ्री वर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय सिंगल पर्सन, only single person, for that kind of business we are going to call as a sole proprietorship. बिजनेस का जो भी काम है, बिजनेस खुद ही ने स्टार्ट किया, खुद ही मैनेज कर रहा है, खुद ही कंट्रोल कर रहा है, जो भी काम बिजनेस से रिलेटेड खुद ही कर रहा है, उसके पास एम्प्लॉयज है, उसके पास वर्कर है, नो डाउट, बट खुद ही एक सिंगल पर्सन ही मालिक है उस बिजनेस का। सो दैट कम्स अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, so second type है joint Hindu family business। joint Hindu family business, आपको तो पता है, we know the things that India it is famous for joint family। okay, India is famous for joint family। most of there are Indian families are there, they are joined together and they are doing their own business। okay, they are not separated। name itself it indicate joint Hindu family business। joint Hindu family business, if any business it is owned, controlled and managed by undivided Hindu family। undivided मतलब वो सेपरेट नहीं हुए, एक ही साथ है, undivided Hindu family, that type of business we are called as a joint Hindu family business। so when this concept will come, that time I will explain the detailed things। okay, so in short में क्या है, हमारे भारत में सेपरेट फैमिली नहीं है, मैक्सिमम जॉइंट फैमिली है। और जॉइंट फैमिली में क्या रहता है, बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट, हमारे पूर्वजों ने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, वही बिजनेस उनके पोता परपोता जो भी कैरी आउट कर रहे हैं, उनका ही बिजनेस, हमारा फैमिली बिजनेस है करके बुलाते हैं ना, सो उनका ही बिजनेस वो कैरी आउट कर रहे हैं, तो that type of business we are known as a joint Hindu family business। एग्जाम्पल ले सकते हो यहाँ पे, जो भी गोल्ड स्मिथ है, गोल्ड स्मिथ ज्वेलर्स, सो वो उनके परदादा दादा उन्हीं का बिजनेस वो आप तक कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उन्हीं का ही बिजनेस है वो आप भी कर रहे हैं। सो दैट इज अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। सो नेक्स्ट वन, पार्टनरशिप मीन्स इफ टू और मोर, मिनिमम टू or more than two peoples join together for managed and control that business। it is owned by these two people, managed by these two people or controlled by these two people, two or more people। okay, so that is known as a partnership। मतलब आप हो और आपके फ्रेंड हैं, दोनों ने मिलकर कुछ भी बिजनेस स्टार्ट किया, तो आप भी मालिक होगे उस बिजनेस का, आपका फ्रेंड भी मालिक होगा, आप भी काम कर रहे हो, आपका फ्रेंड भी काम कर रहा है, आप भी कंट्रोल कर रहे हो, कुछ काम आप कर रहे हो, कुछ काम आपका पार्टनर कर रहा है। सो दैट इज द पार्टनरशिप। सो डिटेल कंसेप्ट वी विल सी इन दिस टॉपिक। सो नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी मीन्स मोर देन 10 peoples आर ज्वाइंड टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी 10 और 10 से ज़्यादा लोग एक मतलब दे आर गेटिंग टुगेदर एंड दे आर डूइंग सम एक्टिविटी दैट इज बेनिफिशियल टू देयर सोसाइटी। यू हर्ड द नेम कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मे बी बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स आर देयर, नो, सो हु आर गोइंग टू रन दैट बैंक्स? सो 10 or more than 10 people are joined together and they are doing that banking services and they are giving that facility to their society। okay, banking society will be there, otherwise you know the dairy milk dairy, okay, within that also more than 10 people
partnership, it can be for that is from cooperative society, but mostly it is from cooperative society because they are doing work for their society. See, within a business what is going to happen, be clear the concept. If milk dairy, it is run by partnership, within a partnership business, so they are thinking only their own benefit. मतलब अभी डेयरी का जो बिजनेस है उसमें हम वो बिजनेस हम पार्टनरशिप में रन कर रहे हैं, मतलब 10 लोग आके हम पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं डेयरी का, मिल्क डेयरी का, जो भी उसका बेनिफिट होगा, जो भी लॉस होगा, वो 10 पीपल्स डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे. दैट इज द पार्टनरशिप केस. कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या रहता है, हाँ 10 पीपल ज्वाइन होकर वो बिजनेस कर रहे हैं, बट वो खुद के बारे में सिर्फ नहीं सोचते. वहाँ पे जो भी हमारे पास जो लोग मिल्क देते, जो भी फार्मर हमारे पास मिल्क लेते हैं, उनके लिए कुछ तो फैसिलिटीज वो देते हैं. मतलब जहाँ पे आपको मिल्क मिलता है वहाँ पे आपको मे बी क्या बोलेगा, फूड फॉर एनिमल यू आर गेटिंग फॉर लो प्राइस देयर. इट इज नॉट मीन्स आपको एक्सपीरियंस होगा, जहाँ आप मिल्क डालते हो वहाँ पे आपको जो भी फूड मिलता है आपके बफेलो के लिए डालने के लिए, जो भी फूड मिलता है वहाँ पे आपको कम रेट में देते हैं. सो दैट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी. मीन्स दे आर डूइंग देयर वर्क फॉर देयर ओन बेनिफिट्स ऑल्सो एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी ऑल्सो. दैट इज द कोऑपरेटिव सोसाइटी. डिटेल कंसेप्ट हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी. जॉइंट स्टॉक कंपनी लास्ट within the forms of business, within the factors while doing the start our business. within that मैंने बताया था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है. जब हमारे पास सब हमारे बिजनेस के लिए जब पैसा नहीं रहता, हमने लोन लिया है, सब कुछ हुआ है, फिर भी हमारे बिजनेस के लिए पैसा कम रह रहा है, तो क्या करते हैं, हम शेयर्स बेचते, लोगों को शेयर्स बेचते. बट लोगों का भी हमारे कंपनी में हिस्सा रहता है. उन्होंने शेयर्स लिया है मतलब उनका भी हिस्सा हमारे कंपनी में रहता है. उस हिस्से की वजह से हम पर ईयर उनको एक डिविडेंड, एक अमाउंट देना पड़ता है. सो दैट कम्स अंडर द जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो डिटेल कंसेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अभी हम फर्स्ट कंटेंट पढ़ रहे हैं, दैट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप. सो व्हाट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप? वी आर सीइंग नाउ फर्स्ट कंटेंट, दैट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप. सोल मीन्स ओनली वन, proprietorship means owner. Only one single owner. Rather than that, no one is owner. He is own means he is owner. He is managing everything. He is controlling everything related with that business. If the business owned, managed and controlled by single person, that kind of business we are known as a sole proprietorship business organization. बिजनेस में खुद ही एक ही पर्सन, एक ही आदमी उस बिजनेस का मालिक है, वही सभी मैनेजमेंट करता है, वही कुछ भी काम रहने दो बिजनेस का कंट्रोल करता है, कुछ भी काम रहने दो, लीगल फॉर्मेलिटीज रहेगा, कुछ भी काम रहेगा बिजनेस का, वही खुद करता है. उसके पास वर्कर्स है, नो डाउट, वो वर्कर भी रखेगा और नहीं भी रखेगा, बट एक ही पर्सन उसका मालिक है, तो दैट कम्स अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप. कुछ भी कौन सा भी बिजनेस का वो एक ही आदमी उसका मालिक है, तो दैट इज द सोल प्रोप्राइटरशिप. यू कैन टेक एग्जांपल हियर पार्लर, ओके, हेयर सैलून, तो कौन चलाता है? पार्टनरशिप में कोई चलाता है क्या? चलाते भी होंगे, दैट इज नो डाउट, ओके, बट मोस्टली फॉर पार्लर, हेयर सैलून और व्हाट आर द स्मॉल स्टेशनरी शॉप विद इन योर कॉलोनी, तो दैट कम्स अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप. वो खुद ही मालिक रहते, खुद ही सभी काम करते हैं, that comes under the sole proprietorship. So I hope you got the thing clearly what it means sole proprietorship. So how you can define? Business owned, managed and controlled by a single person. For that we have called as the sole proprietorship forms of business organization. Okay. So उसका features क्या है देखेंगे आप. अभी हम उसका फीचर्स और यू कैन कॉल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है सोल प्रोप्राइटर में क्या क्या हो सकता है, कुछ बेनिफिट होगा, कुछ नहीं होगा, हम मिनट्स में देखेंगे. उसका फीचर क्या रहता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, अब हम देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट वन, फॉर्मेशन एंड क्लोजर. फॉर्मेशन एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस. फॉर्मेशन एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस मतलब formation means we are forming, we are starting our business, and closure means we are closing.
वी आर क्लोजिंग अवर बिजनेस। स्टार्टिंग अ बिजनेस, क्लोजिंग अ बिजनेस कैसा रहता है? बिजनेस स्टार्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है? क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस बंद करते वक्त क्या प्रॉब्लम आ सकती है? क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में, वो अब हम देखेंगे। ठीक है, सो नो सेपरेट लॉ फॉर फॉर्म एंड क्लोज। जब भी आप खुद मालिक रहते हैं, आप ही सभी आपका बिजनेस मैनेज कंट्रोल करते हैं, तो उसके लिए कुछ भी ऐसा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं रहता। आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो आपका बिजनेस, कभी भी आप बंद कर सकते हो आपका बिजनेस। मतलब इट डिपेंड अपॉन यू। व्हेन यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस यू कैन स्टार्ट। ऐसे फॉर्मेलिटीज कुछ भी नहीं लगती, मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा क्या? रादर देन द सोल प्रोप्राइटरशिप, जो पार्टनरशिप में जाएंगे आप बिजनेस करने में, तो आपके दूसरे पार्टनर के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। वैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ भी एग्रीमेंट, अदरवाइज फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में जो डॉक्यूमेंट लगते हैं वो कुछ करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली, आपने आज डिसाइड किया कि कल से मैं शॉप खोलूंगी, तो आप खोल सकते हो, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। आपके पास गवर्नमेंट कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगा उसके बीच में। यू कैन स्टार्ट एट एनी टाइम, यू कैन क्लोज एट एनी टाइम। आपको बंद करना है आपका बिजनेस, तो भी आप बिजनेस कभी भी बंद कर सकते हो। सो दैट इज द नो सेपरेट लॉ। ऐसा कुछ भी लॉ और रूल्स और गवर्नमेंट लॉ कुछ भी नहीं है, अभी स्टार्ट करो अभी बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं। व्हेनेवर यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस यू कैन स्टार्ट, व्हेनेवर यू वांट टू क्लोज योर बिजनेस यू कैन क्लोज। बट पार्टनरशिप में दोनों का एग्रीमेंट रहना चाहिए, तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तभी आप क्लोज कर सकते हो। जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी जब आपने सभी डिविडेंड पे किया तभी आप क्लोज कर सकते हो। स्टार्ट करने के लिए भी बहुत सारी प्रोसीजर्स है वहाँ, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है। आप कब चाहे तब बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कब चाहे तब क्लोज कर सकते हो। सो ओनली लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड। सम ऑफ 1 or 2 लीगल फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर बिजनेस। मतलब लीगल फॉर्मेलिटी जो जहाँ पे आपका दुकान है, शॉप है, वहाँ से मतलब आपका क्या है, ग्राम पंचायत आएगा, नहीं तो म्यूनसिपलिटी आएगा, वहाँ से परमिशन लेना पड़ता है। सिंपल इतना ही, बाकी कुछ नहीं करना पड़ता। ओके, क्लोज करते वक्त भी इतना ही उनको इंटीमेशन देना पड़ता है कि वी आर क्लोजिंग आवर बिजनेस। सो सिंपल थिंग। सो rather than this no formalities are there, but in such cases some cases it require a license। कुछ केसेस में लाइसेंस की नेसेसरी है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, पार्लर है तो आपका पर्टिकुलर पार्लर का कोर्स रहना चाहिए एंड आपके पास उसका लाइसेंस रहना चाहिए, तब आप कभी भी आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। नहीं तो क्या, पार्लर का कोर्स नहीं हुआ, सर्टिफिकेट भी नहीं है, फिर भी मैं पार्लर चला रहा हूँ। सो सपोज आपने कुछ भी क्रीम यूज करके आपको कस्टमर को डैमेज किया, कस्टमर को स्किन को डैमेज किया, सो आपके ऊपर केस होगा। तब आपके पास लाइसेंस नहीं रहा तो आपको बहुत ही पनिशमेंट मिलेगा। मतलब क्या बोलते हैं, यू हैव टू पे द पनिशमेंट फीस देयर। ओके, सो दैट्स व्हाई इन सम केसेस, नॉट फॉर ऑल केसेस, सभी केसेस में नहीं, सभी बिजनेस में नहीं, थोड़ा सिलेक्टेड बिजनेसेस आर देयर, within that you are required license, within that you are required license. Okay, example I told, that is a parlor. If you want to start your parlor business, you should have the certificate of appropriate course along with license. So that is the example. मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करते वक्त कुछ भी आपको तकलीफ नहीं होगा। When you want to start your business, you can start. When you want to close your business, you can close. Some of legal 1 or 2 formalities are required. In some cases, license is required. That much is enough. Okay. Second क्या है, liability. Second feature क्या है, liability. Liability का मतलब you can call the responsibility also. Or you can call the accountability, answerability. Okay. So liability means responsibility. It is not actually the correct synonym, but we can call responsibility, liability. So sole proprietorship में liability का मतलब क्या है? So sole proprietorship have unlimited liability. Unlimited liability मतलब बहुत liabilities है, बहुत responsibilities है sole proprietorship पे. Okay. So क्या क्या है? Personally responsible for all loans, and owner is not sufficient to pay the debt of loan. Personal property should be sold to pay it. What is the meaning of it? Suppose to start your business within a sole proprietorship,
you are taken a loan from your bank. Okay, if you are taken a loan from your bank, means you have to pay that loan. Is it right? You have to pay the interest of that loan. You have to pay the debts of that loan. Is it right? If in that case, if you are not able to pay that loans, that time your all personal properties are going to be sold to pay that loan. What is the meaning of it? मतलब unlimited liability. See, liability, unlimited liability. Okay, so सिंपल मीनिंग बताती हूँ. liability का मतलब क्या है? responsibility. See, unlimited liabilities are there for sole proprietorship. Unlimited liability. sole proprietorship में ओनर एक ही रहता है, एक ही आदमी सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर रहता है. सो ही इज रिस्पॉन्सिबल ओनली ऑल द डेब्ट्स. मतलब आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से कुछ तो लोन लिया है. ओके, वो लोन चुकाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो जो जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है उसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है. और आपने बिजनेस स्टार्ट किया है और आपका फ्रेंड लोन पे करेगा क्या? नहीं, आपने लिया है मतलब आप ही पे करना चाहिए. बट पार्टनरशिप में जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो जितने भी पार्टनर्स है वो सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आपका जो भी लोन लिया है बिजनेस के लिए वो सभी पे करना चाहिए. बट सोल प्रोप्राइटरशिप में सी इट इज वन पर्सन, इट इज सोल प्रोप्राइटरशिप. इसने खुद ही बिजनेस स्टार्ट किया है एंड दीज थ्री आर पर्सन एक्स वाई जेड, तीनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया है. और एक यस पर्सन है, उसने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है, दैट इज नोन एज द सोल प्रोप्राइटरशिप. और एक तीन पर्सन एक्स वाई जेड, ये तीनों मिला के एक ही बिजनेस स्टार्ट किया है. इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तीनों मिला के एक बिजनेस स्टार्ट किया. और इस आदमी ने बैंक में जाके लोन लिया है. लोन लिया है मतलब इसने लोन लिया और इन तीनों ने भी लोन लिया है. किस लिए? बिजनेस के लिए पैसा तो लगता है. सो यू हैव टू टेक अ लोन फ्रॉम योर बैंक. ओके, जब लोन लेते हो तब आपको पर ईयर कुछ तो डेब्ट पे करना पड़ता है. पर ईयर आपका इंटरेस्ट रेट आपको बैंक को देना पड़ता है. सपोज मतलब यहाँ कितने लोग देंगे वो इंटरेस्ट हो? इसने खुद ने ही लिया है, इसका खुद का ही बिजनेस है, मतलब दिस पर्सन ओनली रिस्पॉन्सिबल टू पे ऑल द डेब्ट्स. उसने खुद पैसा लिया है मतलब उस आदमी ही पे करना चाहिए. जो भी लोन लिया है उसका जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो खुद ही पे करना चाहिए. बट यहाँ पे क्या होगा? इस आदमी, ये आदमी थोड़ा पे करना चाहिए, ये आदमी थोड़ा पे करना चाहिए, ये आदमी थोड़ा पे करना चाहिए. मतलब तीनों भी रिस्पॉन्सिबल है वो लोन चुकाने में. तीनों भी रिस्पॉन्सिबल है लोन चुकाने में. बट यहाँ पे क्या है? एक ही आदमी लोन चुकाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसका खुद का बिजनेस है. वो तीनों ने getting together and they start their partnership business. Okay, so that's why it is unlimited liability and that is limited liability. मतलब इसके पास इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा. दैट मीन्स लिमिटेड, थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा. इसके पास भी थोड़ा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, इसके पास भी थोड़ा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा. दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी. बट इसके पास ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर. मतलब इस आदमी को ही सभी लोन चुकाना पड़ेगा. दैट इज अनलिमिटेड लायबिलिटी. सपोज इन दैट केस आप बिजनेस में लोन तो लिया है बट आप चुका नहीं सकते, तो क्या होगा? ओनर इज नॉट सफिशिएंट टू पे डेब्ट. मतलब जो भी ओनर है वो इंटरेस्ट रेट भरने के लिए उनका लोन चुका नहीं सकता. तब ऑफ लोन पर्सनल प्रॉपर्टीज शुड सोल्ड टू पे. सपोज आप लोन लिया है, आप लोन का पैसा नहीं भर सकते, तो आपका जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी होगा, जो भी आपके पास कार है, आपकी बिल्डिंग है और खेत है, कुछ भी है, इसमें से आपको ये सेल करना पड़ेगा दूसरों को. इट शुड बी सोल्ड एंड ये सेल करके आपका बैंक का जो लोन लिया है वो चुकाना ही पड़ेगा. आपका पर्सनल आप सेल करके बैंक का लोन चुकाना ही पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई लायबिलिटी मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी बहुत रहती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है. बट पार्टनरशिप में तीनों ने मिल के लोन लिया है तो एक खुद का पर्सनल कार बेच नहीं सकता, खुद का पर्सनल प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं बेच सकता. कंपनी का बेचा तो चलेगा बट खुद का कुछ भी नहीं बेच सकते. तीनों मिल के कैसे भी एडजस्टमेंट
बट इस कंपनी के लिए खुद का नहीं बेच सकते। तीनों का मिलके जो भी है वो बेच सकते हो, बट खुद का नहीं बेच सकते। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में आपने बैंक का लोन लिया है तो यू आर ओनली 100% रिस्पॉन्सिबल टू पे द डेट। इफ यू आर नॉट एबल टू पे द डेट, what are your personal property? It may be a car, it may be a building, it may be a gold, it may be a what you call property, or you can call farm. You have to sell that things and you have to pay the debts. Okay, debts of that bank. Okay, so that's why sole proprietorship have unlimited liability and partnership or the other companies have limited liabilities. Okay, so next thing. थर्ड फीचर है सोल प्रोप्राइटरशिप का, सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। सोल दैट मीन्स ओनली और सिंगल पर्सन, ओनली वन और सिंगल पर्सन। सो बियरर, रिस्क बियरर मीन्स what are the risks which arise in your business, that single person is responsible, that single person have to face all the risks. Okay, and if that person got a profit, if that business got a profit, that person only enjoy the profit. There is no any other person who are going to enjoy that profit. Only that single person, because whole business managed, owned and controlled by single person. So that's why soul means single, एक ही आदमी, जो भी means loss of profit faced by single person only. Who are going to start that business now? Whatever you are going to get a loss within that business, you have to face. If you got a profit within a business, that is a benefit to you only. No one going to participate within that, because it's your business. You are going to enjoy the things. If you got a profit, if you are within the loss, you are responsible for it. So no one going to interfere within that. Means यहाँ इसका मतलब क्या है? सोल मतलब एक ही आदमी वो बिजनेस स्टार्ट करता है। ओके, वो बिजनेस में आपको लॉस हुआ तो आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो उसके लिए, और बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट आपको ही मिलेगा। उसमें आपका प्रॉफिट किसी को भी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका ही बिजनेस आप किसी को क्यों देंगे? गॉट द पॉइंट? बट पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में जितने पार्टनर से लॉस हुआ बिजनेस में, तो तीनों पार्टनर का भी लॉस होगा। बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो जितना प्रॉफिट है उस तीनों में डिवाइड करना पड़ेगा। बट सोल प्रोप्राइटरशिप में लॉस हुआ तो मैं ही फेस करूंगा, प्रॉफिट हुआ तो मेरा खुद का ये, मुझे किसको देने की आवश्यकता नहीं है वहां पे। तो दैट इज द सोल रिस्क बियरर एंड प्रॉफिट रेसिपेंट। ओके, नेक्स्ट क्या है? कंट्रोल। सो हाउ वी कैन कंट्रोल द सोल प्रोप्राइटरशिप? ऑल डिसीजन लाइज विद द सोल प्रोप्राइटर। जो भी बिजनेस का डिसीजन लेना है, व्हाट आर द डिसीजन रिलेटेड विद द बिजनेस, that single person they are going to take, that person is going to take a decision. It may be related with the any kind of that business, it may be related with the anything that is related with that business. Okay, so all decision of that business it is going to taken by that single person only. No need to carry out plan without any interference. Means what you did plan for your business without any other person's interfere, you can carry out your plans, you can execute your plan, whatever you want to do for your business, you are only a owner, you are only a responsible. What you want to do for your business, you are going to do without interference of other person. Why? Because it is a sole proprietor. कंट्रोल का मतलब क्या है? बिजनेस में जो भी डिसीजन आप लेते हो आप खुद ही लेने वाले हो। वहां पे आपको किसी की क्या बोलते हैं ओपिनियन लेने की नेसेसरी नहीं है। There is no need to take any opinion from other person. You can take opinion, but they are not going to interfere with that. मतलब जो भी आपका बिजनेस का कंट्रोल है, जो भी डिसीजन लेना है आप खुद ही लेना चाहिए। दूसरा कोई आपके बिजनेस का डिसीजन नहीं ले सकता। कैरी आउट प्लान विदाउट एनी इंटरफेरेंस। जो भी आपका बिजनेस का आपने प्लान किया है, सो विदाउट इंटरफेरेंस, दूसरा का इंटरफेरेंस नहीं होने दे सकते वहाँ पे, बिकॉज इट्स योर बिजनेस। बट पार्टनरशिप में बिजनेस रहेगा तो क्या होगा? इफ थ्री पार्टनर्स आर देयर, पार्टनरशिप का बिजनेस क्या रहेगा? कंट्रोल तीनों के हाथ में रहेगा।
बट सोल प्रोप्राइटरशिप में कंट्रोल एक ही आदमी के पास रहेगा, क्योंकि तीनों मिलकर बिजनेस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कंट्रोल तीनों लोगों के हाथ में रहेगा। मतलब बिजनेस में कुछ भी डिसीजन लेना है तो तीनों मीटिंग लेके एक डिसीजन करेंगे। सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। बट सोल प्रोप्राइटरशिप, मैं किसके साथ मीटिंग करूँ, मेरा बिजनेस है, मैं कभी भी कुछ भी डिसीजन ले सकती हूँ, बट यहाँ पे तीनों को एक दूसरे के साथ मीटिंग करके ही डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं, नो विदाउट एनी इंटरफेरेंस। जो भी आपने प्लान बनाया है आपके बिजनेस के लिए, यहाँ पे आप खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हो प्लान, बट यहाँ पे इसको पूछना पड़ेगा मेरा ऐसा प्लान है, हम इससे करेंगे क्या, बट ये इसको पसंद नहीं आया तो वो प्लान कैंसिल हो सकता है वहाँ पे। सो तीनों मिलके प्लान करना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप प्लानिंग खुद करो, इम्प्लीमेंट भी खुद करो और डिसीजन ही खुद ले लो। सो दैट इज होल कंट्रोल ऑफ बिजनेस आपके हाथ में रहता है, बट यहाँ पे प्लान तीनों मिलकर करना पड़ेगा, कंट्रोल तीनों मिलकर करना पड़ेगा। सो एक दूसरे का हमें पसंद आएगा, हमारा उसका पसंद नहीं आएगा। सो दिस आर द प्रॉब्लम्स आर अराइज विद इन द पार्टनरशिप बिजनेस। एक पार्टनरशिप बिजनेस में प्रॉब्लम हो सकता है। सो दैट्स व्हाई कंट्रोल आर विद इन द अंडर द 3 पार्टनर्स। हियर एक ही आदमी के पास सभी कंट्रोल कर सकता है बिजनेस में। नेक्स्ट, नो सेपरेट एंटिटी। नो सेपरेट एंटिटी मीन्स ओनर and business. Owner and business does not have any separate identity. No separate entity का मतलब क्या है, हम जब लॉ जो भी हमारा गवर्नमेंट्स लॉज है, ओके, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो देयर इज नो सेपरेट एंटिटी फ्रॉम ओनर एंड बिजनेस। इसका मतलब क्या है, सपोज आपने पार्टनरशिप में बिजनेस किया है, सपोज इफ यू डूइंग एनी बिजनेस विद इन अ पार्टनरशिप, आपको लोन चाहिए, आपके पार्टनरशिप में आपने बिजनेस किया है तो आपको लोन चाहिए, तब आप बैंक के पास गए हमें लोन चाहिए करके, तब बैंक क्या बोलती है, आप तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हो, तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हो, सपोज हमने लोन आपको दिया है बट आपने वो लोन चुकाने के लिए एबल नहीं हो, चुका नहीं सकते, तब कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वो सब लोन चुकाएंगे, कौन रिस्पॉन्सिबल है वो लोन के लिए, तब कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि तीनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ना। हम तीनों मिलके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब तीनों मिलके वो लोन चुकाना चाहिए, ठीक है, बट लोन तो एक ही आदमी के नाम पे ऊपर रह सकता है, तीनों के ऊपर एक ही लोन नहीं रह सकता, लोन एक ही आदमी के नाम पे रह सकता है, तीनों के ऊपर लोन एक ही लोन तीनों के ऊपर नहीं रह सकता। यहाँ पे गए, इस आदमी ने बैंक के पास गया और पूछा मुझे लोन चाहिए, तो बैंक एक ही आदमी तो कुछ भी पे करना पड़ेगा, वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। सो वहाँ पे इसका बिजनेस और इस आदमी में कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा, दैट इज नो सेपरेट एंटिटी। मतलब इसने बिजनेस के लिए लोन लिया है तो खुद ही चुकाएगा, बट यहाँ पे सेपरेट एंटिटी रहेगी। सेपरेट एंटिटी मतलब 3 आदमी बिजनेस कर रहे हैं, तो उन्होंने बिजनेस के लिए लोन लिया है, तब क्या करना पड़ेगा, एक आर्टिफिशियल पर्सन करके, जो भी बिजनेस का आपका नाम दिया है आपने, उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन करके उस कंपनी के नाम पे आपको लोन लेना पड़ता है। वो आदमी नहीं है वहाँ पे, कोई भी नहीं, बट आर्टिफिशियल पर्सन, मतलब इसने कंपनी को क्या नाम दिया, यक्स नाम दिया है, तो एक यक्स कंपनी ने लोन लिया है, मतलब यहाँ पे इस आदमी ने लोन लिया है, ये फिक्स रहता है, दैट इज नो सेपरेट एंटिटी। इसका जो भी ओनर है, जो भी बिजनेस है, वही खुद ही चुकाएगा, बट आदमी ए बी सी तीनों मिलके बिजनेस कर रहे हो और इनका कंपनी का नाम है Z, तो बैंक वाले क्या बोलेंगे, आदमी ए बी सी ने लोन लिया है ऐसा नहीं बोलेंगे, कंपनी Z ने लोन लिया है करके बोलेंगे। मतलब कौन पे करेगा वो लोन, कंपनी Z पे करेगी, इसमें से ए ज्यादा है, ए कम है, और दिस इज नॉट अ मैटर फॉर दैट बैंक। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। नो सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या है, बिजनेस, व्हाट इज अ बिजनेस, और उसका ओनर, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर रहता है, उसका बिजनेस और ओनर, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं रहता है। और बिजनेस के लिए लोन ले लो, कुछ भी ले लो, उस खुद आदमी का रहता है, दैट इज द नो सेपरेट, उसका सेपरेट कुछ भी नहीं था, उसका खुद का ही रहता है। बट पार्टनरशिप में बिजनेस किया तो तीनों का मिलके एक रहता है,
कर रहे हैं वो बिजनेस के नाम पे, कंपनी के नाम पे लोन लेंगे, खुद के नाम पे नहीं। बी क्लियर द कंसेप्ट। खुद के नाम पे लोन लिया तो सपोज ए ने बोला हाँ कुछ भी मैं लोन लेता हूँ, मैं सभी लोन लेता हूँ कंपनी का और मुझे मेरे नाम पे लोन ले लो, और बीच में ये दोनों ने छोड़ दिया कंपनी, तो इसको लोन चुकाना पड़ेगा सब कुछ, तो दैट इज अ लॉस टू दिस पर्सन नो। सो इंस्टेड ऑफ दैट तीनों मिलके एक एग्रीमेंट करते और कंपनी के नाम के ऊपर ही लोन लेते, खुद के नाम के ऊपर लोन लेने की बजाय कंपनी के नाम पे ऊपर लेते। मतलब यहाँ पे कंपनी और उसके ओनर में सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है, कंपनी और ओनर के बीच में सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में नो सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब जो भी कंपनी है, जो भी ओनर है, खुद एक ही है। यहाँ पे कंपनी डिफरेंट है, ओनर्स डिफरेंट है। मतलब कंपनी को एक आदमी ही करके बुलाते हैं, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी इज लाइक अ आर्टिफिशियल पर्सन एंड हियर आपका लीगल फॉर्मेलिटी जो भी है वो लगती है। यहाँ पे उस आदमी के नाम पे ऊपर लोन लिया तो दैट पे चाहिए। कुछ भी प्रॉपर्टी हमें परचेज करनी है, बिजनेस में मुझे प्रॉफिट हुआ है, आई वांट टू इन्वेस्ट दैट प्रॉफिट एनीवेयर, इसको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो इसको कुछ तो प्रॉपर्टी लेनी है, एक जगह लेनी है, खेती लेना है, तो एक खुद के नाम पे परचेज कर सकते हैं क्योंकि इसका बिजनेस और इसके बीच में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है बिजनेस में और एक कुछ तो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो किसके नाम के ऊपर खरीदेंगे? तीनों के नाम पे ऊपर एक ही प्रॉपर्टी तो नहीं रहेगी, तो वो प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पे ऊपर खरीदी करते हैं। कंपनी और ओनर्स में डिफरेंस है, दैट इज द सेपरेट एंटिटी लगेगा। कंपनी और ओनर में डिफरेंस नहीं है तो नो सेपरेट एंटिटी। आई होप यू गॉट द क्लियर थिंग। इफ यू डोंट गॉट दिस थिंग्स प्लीज कमेंट बिलो, वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग्स, ओके। एंड लास्ट, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी ड्यू टू डेथ, इंसैनिटी एंड फिजिकल अलाइनमेंट, ओके। सो सोल प्रोप्राइटरशिप, जो भी एक ही आदमी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वो बिजनेस ज़्यादा देर तक रुकता नहीं है, इन रेयर केसेस, ओके। मतलब कंटिन्यू बिजनेस नहीं रहता क्योंकि वो ओनर मर चुका तो उसका डेथ हुआ तो वो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। इंसैनिटी मतलब वो आदमी पागल हुआ तो भी वो बिजनेस कैसे कैरी आउट कर सकता है, वो बिजनेस बंद करना पड़ेगा। फिजिकल अलाइनमेंट, उसको कुछ भी फिजिकल अलाइनमेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, हाथ चला गया, पैर चला गया, वो आदमी काम करने के लिए एबल नहीं है तो उसका बिजनेस क्लोज हो सकता है। बट पार्टनरशिप में एक आदमी का कुछ तो हुआ तो दूसरा दो रहते वो बिजनेस कैरी आउट कर सकते हैं, सो इट कैन बी कंटिन्यूअल। बट यहाँ पे एक ही आदमी रहता है तो बिजनेस कंटिन्यू करने के लिए मुश्किल आ सकती है। सो ड्यू टू द डेथ, insanity, physical alignment, or you can call it jail, due to anything, there may be the lack of continuity of that business. So I hope you got the clear thing about what are the features of sole proprietorship. I hope you have doubt within the most separate legal entity. इसमें ही आपको डाउट होगा, बट मैंने ट्राई किया है एक्सप्लेन करने के लिए। फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो, अदरवाइज आस्क मी पर्सनली, आई विल एक्सप्लेन द डिटेल कंसेप्ट। So thank you so much. Bye bye. Take care.